जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। आज गुरु शिष्य चाटशालार यही अध्याय को समस्त को स्वागत। व्याकरण विषय पद जो 5 प्रकार विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया। आज सर्वनाम को समस्त आगरे ये विश्लेषण करेंगे छात्र छात्री मानकर हित दृष्टि संदेह पोषण करी उपस्थापन करेंगे गुरुजी गोदावरी बसंतिया महोदय। सर आपण सर्वनाम विषय पिला आलोचना। जय श्री जगन्नाथ। तो कालांशरे आलोचना करथिले विशेष्य पद संपर्क रे। आज आम आलोचना करिबा पद प्रकरण द्वितीय भाग सर्वनाम। ताहाले आमे वाक्य रे दिरुक्ति उठेबा पाई कर्ण को श्रुति मधुर हेबा पाई आमे सर्वनाम पद व्यवहार करिथाउ। जदि आमे कहिबा राम गोटिए भल पिला, राम भल पढ़े, राम भल खेले, राम भल नाचे, ताले जो दिरुक्ति आसुची राम 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 ता बदल रे अर्थात आमे कौनसी एक पद परिवर्तन जो पद व्यवहार करू ताहाकु सर्वनाम पद कहती। को पद परिवर्तन ताहाले आमे देखिबा साधारणतः आमे विशेष्य पद बदल रे आमे सर्वनाम पद व्यवहार करिथाउ। उदाहरण स्वरूप ईश्वर दयाशील, से सद्बुद्धि दियंती, ताले ईश्वर दयाशील ए से कहा बदल रे बसिची, कहा परिवर्तन बसिची ना ईश्वर। एटे ईश्वर होचंती विशेष्य पद। तेणु विशेष्य पद बदल रे जेउ पद व्यवहार करा जाए ताहाकु सर्वनाम पद कहंती। केतेक क्षेत्र रे देखा जाए विशेषण पद बदल रे मध्य व्यवहृत होइथाय सर्वनाम। केमिते जानिबा आमे ना गोटे उदाहरण दबा। विशेषण पद परिवर्तन जेउ पद व्यवहृत हुए केतेक क्षेत्र रे पिता चतुर किंतु पुत्र सेपरी नुह। एठे हमें देखिबा पिता चतुर, ए चतुर शब्दटी होछि हमर विशेषण। एठी जो लागुची सेपरी पुत्र सेपरी नुहंती बेले चतुर नुहंती। तेणु चतुर आउ थरे न लेखि चतुर पद परिवर्तन आमे जो सेपरी लगैले ए सेपरी होची सर्वनाम। बेले बेले देखिया को मिले आमे वाक्यर परिवर्ते मध्य सर्वनाम पद को व्यवहार करू। आमे कहिबा जवाहरलाल नेहरू जने विचक्षण राजनीतिज्ञ थिले। जवाहरलाल नेहरू जने विचक्षण राजनीतिज्ञ थिले। देखिए विचक्षण, हाँ विचक्षण राजनीतिज्ञ। एहा समस्त एहा समस्त को जना। ताले एठी हम देखिबा जवाहरलाल नेहरू जने विचक्षण राजनीतिज्ञ थे जे स्वतंत्र गोटे वाक्य हे गला एहा समस्त को जना। अर्थात एहा अर्थात ए संपूर्ण वाक्यटी जवाहरलाल नेहरू जने विचक्षण राजनीतिज्ञ थे। संपूर्ण वाक्य बदल रे एहा लागिছে अर्थात सर्वनाम पद मध्य बेले बेले गोटे वाक्यर परिवर्तन
କେତେ ବସେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବାକ୍ୟାଂଶ ପଦ ବଦଳରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହିବା ଜୟଦେବ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହା କିଏ ନ ଜାଣେ? ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। କିଏ ନ ଜାଣେ ହଉ। ତାହେଲେ ଜୟଦେବ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏହା ଅର୍ଥାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଏ କଥାଟା କାହାକୁ ଅଜଣା? ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ, ବିଶେଷଣ ପଦ ବଦଳରେ, ବାକ୍ୟାଂଶ ପଦ ବଦଳରେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ଆମେ ତାର ଯିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ? ନା ଆମେ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ତାହେଲେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆମର 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ତାହେଲେ ପୁରୁଷବାଚକ ପୁଣି 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଲେଖୁଛେ ମୁଁ ଏବଂ ତାର ବହୁବଚନରେ ଆମ୍ଭେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖୁଛେ ତୁ, ତୁମେ ମାନେ, ସେ, ସେମାନେ। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ବସନ୍ତି ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତୁ, ତୁମେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସେ, ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ତୁ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ସେ, ସେମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ଯିବା। ଆପଣଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୁ ବଦଳରେ ଆପଣ। ସମ୍ମାନ। ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ, ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଉଦାହରଣ ଦେବା। ତୁମର ନାମ କଣ? ତୁମର ନାମ କଣ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କିପରି ଅଛ? ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ଏଇ ଯୋଉ କିପରି, କେଉଁଠାରେ, କଣ, କିଏ, ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଇଗୁଡିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତୃତୀୟକୁ ଯିବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତୃତୀୟରେ ଆସନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ପଦ କହିବା। ଯେପରିକି ଠିକ କଥା ନିରାକାର ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିଯିବା ଆମେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦବା। ଏ ଗାଁଟି ମୋର। ତାହେଲେ ଗାଁଟି ହେଲା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଲେଖା ହେଲା, ଏଇ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ସର୍ବନାମ। କୋଉ ସର୍ବନାମ? ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ଗାଁ। ଏ ଗାଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ
कविराज अटନ୍ତି से व्यक्ति जनक मो मामू हबो से जनक से व्यक्ति जनक ताको निर्देश कराउची तेणु ये सेटा मध्य माने जिवा निर्देशात्मक सर्वनाम पद ठीक अछि हाँ तापरे हमें जिवा आ उदाहरण दबा कि नहीं एटा दी भाग रे हमें करि परिबा दूर निर्देशात्मक एवं निकट जेमिति निर्देशात्मक जेमिति दिसे तात एहा ताहा एगुडिक से गुडिक अच्छा तापरे आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम चार रे आपेक्षिक चार रे हमें जिबा आपेक्षिक बा संबंध वाचक सर्वनाम ताले जो आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम आम पाठ करिबा ये वाक्य रे व्यवहृत हुअन्ते विशेष्य पद को संबंध करिबा पाई एवं आपेक्षिक बा संबंध अर्थ आमे दुईटा विशेष्य को संबंध करिबा अर्थात केमिति हबो उदाहरण दबा तुमे जेपरी काम करिबो सेपरी फल पाइबो जेपरी काम सेपरी फल ताहाले परस्पर को से अपेक्षा करतो जेपरी से सेपरी के अपेक्षा करिसंती बा आपेक्षिक एवं से मत दीटा वाक्य को से संबंध रखुछंती जेपरी काम सेपरी फल जे देश जाई से हां आ गोटे सुंदर वाक्य सारे कहलेनी जे देश जाई से फल खाई से फल खाई एठे आउ जे आउ से तेणु उभय आमर आपेक्षिक बा संबंध स्थापन करुछंती गोटे अन्यटीर संबंध बिना अधूरा तेणु आमे एगुडा कहया जे से जेपरी सेपरी एगुडा को होची आमर आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम आ गोटे भलो अछि जोरजार मूलकता जोरजार मूलकता जार तार हां तापर आसीबो सीधा में दिबा पंचम ये निर्णायक सर्वनाम पंचम रे हमें देखिबा निर्णयात्मक निर्णायक निर्णायक सर्वनाम जे कि विशेष्य पद को निर्णय करता है जे कि विशेष्य पद को निर्णय करि थाए केमिति नाम देखिबा राम ओ हरि राम ओ हरि दुई सांग भल रे पाठ पढନ୍ତି उभय भल पाठ पढନ୍ତି भल पाठ पढନ୍ତି ताले राम हरि राम होची विशेष पद हरि होची विशेष पद ए जो उभय एमान को से निर्णय करूची को दुई जना भल पाठ पढନ୍ତି ना उभय राम आ हरि ये दिजा को निर्णय करूथवा जको ये निर्णय सर्वनाम निर्णयाक सर्वनाम अन्य लोक मान को सम्मान देले निजर सम्मान बढ़े जदि हमें आउ उदाहरण दवा अन्य लोकों को सम्मान देले निजर सम्मान बढ़े ताले के अन्य लागि हां एटे निजर तेणु अन्य आउ निजर एठे मत हिजिब निर्णायक सर्वनाम निर्णायक शब्द प्रत्येक लोक ईश्वर को संतान हां आउड दे दबा प्रत्येक लोक ईश्वर को संतान ताले लोक को निर्णय कला प्रत्येक तेणु प्रत्येक केते लोक जणे ना दिजण ना प्रत्येक एटा प्रत्येक लोक निर्णय करदला लोककर समस्त एटा है सर्वनाम आको हमें कहबा निर्णायक सर्वनाम छरे आत्मवाचक सर्वनाम
वर्तमान आम देखा आत्मवाचक सर्वनाम ताले आत्मवाचक सर्वनाम कौन ताले आत्मवाचक सर्वनाम होची जो सर्वनाम पद गुड़िक निज को बुझाई थे जमी आम कहे मु आपे तुमे निजे ये जो निजे आपे आपणा ये गुड़ाक हूँ निजे आपे आपण आम कहे आपणा हस्ते जिह्वा छेदी तार के अच्छी प्रतिवादी ताले आपण ये गुड़ाक हूँ आत्मवाचक तू निजे तुमे निजे आपे बंचिले बापर ना ये गुड़ाक हूँ सब आत्मवाचक सर्वनाम तापरे आसीबो छ रे वर्तमान आम छ को जीवा छ प्रकार टी होउछि हमर पांच रे एटा छ रे गला छ रे गला सात रे सात रे छ गला एटा सात रे आसीबो सात रे समुचय हां बा समुचय बोधक सर्वनाम बा समुचय बोधक सर्वनाम ताले समुचय बा समुचय बोधक सर्वनाम कोन ना जेउ सर्वनाम वाक्य रे विशेष्य पद को विशेषित करी विशेष्य पद को बा विशेष्य पद बदल रे व्यवहृत होई दीटा वाक्य को जोग करे ताहा को आमे कहिबा समुचय बा समुचय बोधक सर्वनाम कहिबा एपरी लोक केही नाही जे जीवन रे थरे मात्र मिछ कहि नाही ताले एटले क्या एपरी लोक केही नाही जे जीवन रे थरे मात्र मिछ कहि ना ताले एपरी लोक केही नाही ताले एठी आछि एपरी एवं एपट लगी जे अर्थात आमर विशेष्य पद को विशेषित करी ता सहित दुईटी वाक्य को मध्य जोग करूची तेणु ये हेले समुचय सर्वनाम आ गोटे अनेक लोक जही मिली अवश्य भागवत रे हम अछि जे अनेक लोक जही मिली अवश्य उपजय करी अवश्य उपजय करी ताले अनेक लोक जही मिली ताहाले आमे ये विशेष्य पद बदल रे विशेष्य पद को विशेषित करूछन्ते एवं दुईटी वाक्य को मध्य जोग करूछन्ती तेणु ये हेले समुचय सर्वनाम वर्तमान आमे आ गोटे ईश्वर एठी सेठी सबुठी अछि बढ़िया कथा कहछन्ती ईश्वर एठी सेठी सबुठी अछि सर्वत्र विद्यमान ताले एठी सेठी सर्वत्र ये होची मध्य समुचय सर्वनाम पदर उदाहरण ईश्वर एठी सेठी सर्वत्र अछंती अर्थात ये तीनोटी ईश्वर एठी विद्यमान ईश्वर सेठी विद्यमान ईश्वर सर्वत्र विद्यमान तीनोटी वाक्य को जदि आमे गोटे वाक्य करिबा ताले ईश्वर एठी सेठी सर्वत्र विद्यमान मो जीवन पछे नरके पड़िथाउ जगत उद्धार मो जीवन पछे नरके पड़िथाउ जगत उद्धार मो जीवन मो ताले एटा मध्य हमर दीटा वाक्य को जोग करि पारुचे तेणु आमे ताकू मध्य समुचय सर्वनाम कहि परिबा धन्यवाद।
ହଉ। ଆଜି ଆମେ ସର୍ବନାମର ସଂଜ୍ଞା ତାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ 7ଟି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଆଣିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।